Hello students. Hello students. Welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. And if you are not, then please do. क्योंकि ये बहुत important time है, बहुत crucial time है. You should focus on your studies. आपको हर बार ऐसे मोटिवेट करते नहीं रहेंगे, आपको खुद से मोटिवेशन ढूंढना है और पढ़ाई करना है. क्योंकि ऐसे मोटिवेशन हर दिन मोटिवेट करते रहे तो आधा घंटा तो लेक्चर का उसी में चला जाएगा, है ना. तो खुद को मोटिवेट करो और अच्छे से पढ़ाई करो. आपका ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज इसको यूज करो और पढ़ाई करो अच्छे से. तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम पे हमने क्वेश्चंस किए थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी सम डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले एक लिख लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपको पता है अच्छे से. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है that the energy cannot be created, the energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. Energy can neither be created nor destroyed. It can be only transformed or converted from one form to another. ये आपको पता है. We cannot create energy, we cannot destroy energy. Just हम क्या करते हैं, हीट से साउंड, साउंड से मतलब डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल से हम लोगों ने मैकेनिकल कर दिया. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वी कन्वर्ट दी एनर्जी कुछ फॉर्म से, हम उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल, अपने फैन चलाते हैं. लाइट में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारे पास लाइट बल्ब वगैरह चलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे ओवन वगैरह चलते हैं. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. सो वी कैन जस्ट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो इस स्टेटमेंट को जस्ट लिख लेंगे क्योंकि ये यूज होगा. ठीक है, तो इसके बाद वी विल सी अबाउट फोर्सेस. कुछ फोर्सेस है जिनका एक और देयर इज अ वन मोर क्लासिफिकेशन वी कैन से. सो फर्स्ट वी विल सी सम एग्जांपल एंड देन वी विल डिफाइन द टाइप ऑफ फोर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ दैट फोर्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने फाइंड आउट किया था. वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज mgh, where mg was the force acting in downward direction and h was the vertical displacement. If it is in downward direction, then work done by gravitational force was mgh. It was positive. Why? Because mg and h both are in the same direction. Cos theta is equal to 1. Clear? But if the object is moving upward, if the object is moving from this point to this point, then force is acting in this direction and displacement is in opposite direction. We are applying some external force and we are holding this object or we are bringing this object upward. We have to do work against gravity. ठीक है, तो work done by gravity is minus mgh. If we are taking this object to a height h from this point, so what we will say that work done against gravity or work done by gravity is minus mgh, or work done by external force. What is external force right now? I am applying a normal force on this block. ठीक है, so this block is moving upward because of this normal force and this normal force is working against gravity. ठीक है, तो work done by this forces on this block is mgh, but work done by gravity is minus mgh. Why minus? Because we are working against gravity. Now if I bring this block here and I release it, ठीक है, यहाँ पे लेके आए, रिलीज किए, so this block is moving down. इस अगर हम इसको ऊपर लेके आए, अगर इसको हमने रिलीज किया, this block is moving down. Now just tell me, okay, it is fine. We can say that when we release this block, work is done by gravity. That's why work is done by gravity. That's why the block is gaining some velocity. If you throw a object, or just say if you release an object from some height, if when that block comes down, it will have some velocity. It will have some velocity. It means it has gained kinetic energy. The block has gained kinetic energy. कहाँ से आई ये एनर्जी? भाई दिस एनर्जी केम फ्रॉम वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया. वी हैव स्टडीड वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू change in kinetic energy. Now when I release this block, there was only one force acting on this block. That was gravity. So work done by gravity is equal to change in kinetic energy. So gravity has done some work on this object and that object has gained velocity and kinetic energy. Clear? But if we talk about the conservation of energy concept, if we see from the point of view of
conservation of energy. Then this block, we are releasing it, so it has zero velocity, it means zero kinetic energy. It doesn't have any other energy. Does it have any other energy? No. So इसको हमने release किया. Now when it came to the bottom, it has some energy. भाई कहाँ से आ गई energy? Energy generate हो गई? नहीं. So यहाँ पे if you know a little bit, there is a concept of potential energy. याद है? There is a concept of potential energy. We say that कि अगर एक point से किसी height पे object है, इस पॉइंट से अगर किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट है, देन इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन वी विल रिलीज इट विल लूज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इट विल लूज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा सा हमने 9th में पढ़ा है और ये हमें पता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी. जब वो नीचे आया तो उसकी हाइट कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड इफ वी सी फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है ये चीज? सो इतनी बात है, इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल स्टडी समथिंग एल्स. क्लियर? सो इफ वी टॉक अबाउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज if the object is moving from this point to this point which is at height h, work done by gravity is mgh. ठीक है, it is moving from this point to this point. If that object moves from this point to this point, then work done by gravity is minus mgh, and if we are moving from this point to this point, work done by gravity is mgh. Clear? If we are moving up, work done by gravity is minus mgh, work done by gravity is minus mgh, and in this case work done by gravity is plus mgh, because in this case the gravity is pulling the object towards itself. ठीक है, work done by gravity is positive because work done force is in this direction, displacement is in this direction, work done is positive. We are not working against gravity. Gravity is working, gravity खुद काम कर रहा है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव. अगर work done हो रहा है against gravity, then work done by gravity is negative, क्योंकि हम उसके against काम कर रहे हैं. Clear? So हमने देखा था कि when if the object will move like this, if the object will move like this, if it moves like this, in all these cases, what is the change, what is the work done by gravity? If we see first path, which is this, work done by gravity is mgh, minus mgh. Fine. If we see this path, work done by gravity is how much? It is again mgh. We had seen all the cases. If it is moving like this, है ना, और भी हाँ ऐसे केस देखा था, और like this. In all these cases, work done by gravity is mgh, where h is this height, है ना, it is mgh. So the work done by gravity is not depending on path, है ना. Work done by gravity is not depending on path. It is depending on the position of the object, है ना. It is depending on the position of the object along the force. Now object is here. In this case, object is here. In this case, object is here. In this case, object is here, and in again this case, object is here. ठीक है. So again, it has different positions. On this line only, it has different positions. But if we see in vertical direction, position is again same. This y level, this vertical level is same, this complete vertical level is same, this level is same. So again, if we move this object from this point to this point, or like this, or like this, in all these cases again work done by gravity is going to be plus mgh. Clear? Again in this case, all the 4 cases, work done by gravity is going to be plus mgh. So basically जो यहाँ पे work done by gravity है, it is not depending on the path traveled, on which path, what type of path you have followed. It is not depending on that. It is just depending on the position of particle, that too in the direction of force. Clear है? So यहाँ पे it is not depending on the path. ये याद रखो. Next, if we talk about friction, one object started from here, ठीक है, and that object has followed this complete path, मान लो. ठीक है. अब यहाँ पे if throughout this path the friction coefficient between this block and the surface is mu,
then what will happen? We want to find out the work done by friction. We want to find out work done by friction. What we'll do? Bhai, in all these cases, dW will be F ds, F dot ds, ठीक है, and integration of this will be total work done. If we do in this case mg dot ds, clear है, mg dot ds. Now यहाँ पे क्या हो रहा है? Let's say we talk about this path. तो क्या होगा? इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं and we'll erase this. इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही लेते हैं बस, काफी, ठीक है. तो in this case we'll take this path. So ये कुछ ऐसा है. So object started from here and it has reached to this point which is at height h. Now we want to find out work done by gravity. हमने पहले ही find out किया है but let's revise it. ठीक है. तो यहाँ पे force dot ds, clear. Now mg is constant. Now I can write mg is constant. So mg outside dot ds. So what we are doing? We are adding small ds vectors, small vectors. ये ds plus this plus this plus this, clear है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? It will be this. इन दोनों का रिजल्टेंट it will be this. फिर इन दोनों का रिजल्टेंट it will be this. फिर ऐसे करके किया तो this will be the resultant. फिर इसको ऐड किया तो this plus this will be the resultant. फिर इसको ऐड किया this will be the resultant. Like this. Plus this will be the resultant. This will be the resultant and then let's say इसको लिया तो this plus this will be the resultant. ठीक है. So finally we have got summation of this. मतलब we are adding small ds vectors. Small ds vector when we added, क्या होगा यहाँ पे? भाई definitely when we have so many vectors like this, क्या होता है यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है. इस पे जो फाइनल whatever will be the position, वहां पे जो वेक्टर जाएगा, this is the resultant of all. आपको डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेक्टर वाज टॉट टू यू, आपको डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से पढ़ाया गया था कि वेक्टर्स को एक ऐसा मान लो कि दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स. तो अगर यहां से हमने स्टार्ट किया, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? इट विल बी लाइक दिस. So similarly, this was the initial point, this was the final point. This is your displacement. तो इसका summation क्या आएगा? इसका summation will be this. यही आएगा. Clear है ये चीज? Now mg dot, इसको हम बोल देते हैं s resultant. mg dot s resultant. Clear है? So mg dot s resultant. Now there is a angle between it, theta. तो ये क्या आ जाएगा? This will be mg sr cos theta. mg sr cos theta. sr cos theta is nothing but h. तो ये आ गया mg h. यही हुआ. So basically what is happening? यहाँ पे this force is constant. It is in this direction. So हमने इसको बाहर निकाल दिया. And now this dot ds, we added all these vectors. So we got this vector. उसको हमने जब angle लिया, again we got mg h. But in this case what is happening? भाई f dot ds है, f dot ds. Now at every point, if you see this interval, this ds part, what we see at every point, friction and that small displacement ds are exactly opposite. Clear? If we are moving, if that block is moving on this part, अगर वो यहाँ पे चल रहा है, so block will move like this, friction will act like this. When it is at this part, block will move like this, friction will act like this. ठीक है? So they are exactly opposite. कहीं भी ले लो. If you take this part, block will move like this, friction will act like this. So all the time, because friction opposes the relative motion. So whatever will be the direction of motion, friction will act exactly opposite to that part, है ना? To that direction. It means अगर इसको हम simplify करें, I can write fs ds cos 180 means minus. ठीक है? fs ds cos 180 minus. अब यहाँ पे
ये है इन दिस केस यहाँ पे हमने इसको हटाया नहीं था, डॉट को हमने हटाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास mg तो कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, बट इनके बीच का एंगल कांस्टेंट नहीं है। इनके बीच का एंगल कांस्टेंट है क्या? नो, इट इज वेरिंग। बट इन दिस केस हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते mg ds cos theta, we cannot write because that theta is not constant and we don't know that theta. So better to take this out, calculate this vector and then do it, ठीक है। But in this case यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, it is 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, fs ds cos theta cos 180 डिग्री। अब माइनस fs को बाहर ले लो। Now this is the integration of length. This is the integration of length. That was the integration of vector. We were adding vectors there. In this case, we are adding length. So ये क्या होगा, पूरी की पूरी length add हो जाएगी. So if you are traveling on this path, this total length will get added. तो हम लोग को क्या मिलेगा, total path length. क्या मिलेगा, total path length. ठीक है। So fs into total path length. अगर आप पूरा इधर से इधर ट्रेवल करके आए, वापस अगर आप इस पॉइंट पे आ गए, if you go like this and then come back like this, तब भी क्या होगा, total path length will get added. यहाँ पे क्या आएगा, total path length. In this case, if you go from this point, ऐसे गए and again came back to this point, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0, because vectors में you started from this point and again you came back to this point. What will be the resultant? Resultant will be 0. So in this case, if you move on a loop, आप अगर एक लूप में चल रहे हैं, लूप मतलब क्लोज पाथ, अगर आप एक क्लोज पाथ में चल रहे हैं, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड केम बैक टू हियर, आपका वर्क डन क्या हो गया, 0, बिकॉज दिस हैज बिकम 0 नाउ। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दिस केस आप क्या कर रहे हो, यू आर एडिंग द पाथ लेंथ, यू आर एडिंग द पाथ लेंथ। तो इफ यू आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, अगर आप वापस यहां पे आए, दिस टोटल पाथ विल गेट एडेड, ठीक है, टोटल पाथ विल गेट एडेड। So यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि when we are talking about friction, when we are talking about friction force, it is work done by friction forces depending on path. Work done by mg is not depending on path. Work done by mg is not depending on path. ये क्यों पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई? This was a constant, इसको हमने बाहर ले लिया, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, बट और दूसरा केस क्यों नहीं कर पाए हम cos थीटा वाला, बिकॉज थीटा इज चेंजिंग बिटवीन देम, थीटा इज चेंजिंग, तो हम उस तरीके से नहीं कर पाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो इफ यू वांट टू टेक दिस आउट, दिस शुड बी अ कांस्टेंट ना, बट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, अगर इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट, इफ वी डू f ds cos थीटा, देन fs विल बिकम कांस्टेंट, दिस विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी कैन टेक इट आउट। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दिस हैज बिकम लेंथ। अब इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ विल गिव द पाथ लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ या समेशन ऑफ वेक्टर्स विल गिव अस द रिजल्टेंट वेक्टर। इट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का, एंड अगेन देयर इज अ डॉट, सो व्हाटएवर डायरेक्शन इट हैज, ये cos, यहाँ पे cos थीटा वाला टर्म आएगा, which will result into SR cos theta, which will become h, vertical height. So it is basically depending on the vertical height of the object, या vertical position of this object. लेकिन in this case, the work done is depending on the path length. Work done is depending on the path length. तो यहीं से हमारे पास there is a new classification of forces. क्लासिफिकेशन ही बोल सकते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इसका ये जो भी किया है हमने, इसको लिख लेंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट द डेफिनेशंस ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो राइट दिस डाउन एंड देन राइट कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट राइट कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स, a force is said to be a conservative force if the work done by that force doesn't depend on the work done by that force is independent of the path traveled by the object. A force is said to be conservative force if the work done by that force is independent of path traveled by the object, and it only depends on the initial and final position. It only depends on the initial and final position.
A force is said to be conservative force if work done by that force is independent of the path traveled and it only depends on the initial and final position of the object. It only depends on the initial and final position of the object. Examples are gravitational force, electrostatic force, spring force, etc. और भी एक दो आप पढ़ेंगे बाद में. नेक्स्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. A force is said to be non-conservative force if the work done by that force depends on the path traveled. If the work done by that force depends on the path traveled by the object. A force is said to be non-conservative force if work done by that force depends on the path traveled by the object. It depends on the path traveled by the object. Clear? Example is friction force, air resistance, viscous force. Viscous also you will be studying later in your subject. So these are the non-conservative force. One more important point. Now in this case we had taken mg out. क्यों लिया हमने? Because it was a constant force. Its magnitude is constant, its direction is constant. Its magnitude is constant, its direction is constant. So हमने इसको बाहर ले लिया. तो every constant force, each and every constant force, उसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. If it has a constant magnitude and fixed direction, then we can treat that force like this. We can take it out and we can solve the problem in this way. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Every constant force is a conservative force. Write this point. Every constant force is a conservative force. ठीक है? हर constant force can be treated as conservative force. Why? Because इसका magnitude constant है, इसका direction constant है. It will be taken outside. When you integrate this or when you sum up all the vectors ds, what we are going to get? We are going to get mg dot resultant of all those vectors. तो फिर क्या आ जाएगा? I mean whatever force we have, f dot ds या f dot that final resultant vector. So क्या बन जाएगा? f into that into cos theta. तो फिर वो again क्या आ जाएगा हमारे पास? mg h टाइप का, मतलब displacement in the direction of force. So every constant force is conservative force. ठीक है? All the constant forces are conservative forces. और एक important point, for conservative forces, the work done in a closed loop, for conservative forces, work done in a closed loop is 0. And for non-conservative forces, work done in a closed loop is not equal to 0. Work done by non-conservative force in a closed loop is not 0. So like I said that spring force is again it's a conservative force. So in when we studied work done by spring force, the formula was half k xi square minus xf square. है ना? यही था formula. It means again it is depending on the initial position that is xi and final position that is xf. वहां पे हमारा xi and xf था डिफॉर्मेशन, बट हमने उसको इस कंडीशन लेकर के किया था कि पहले वो xi इलोंगेटेड है एंड देन xf इलोंगेटेड है, या फिर xi डिफॉर्मेशन है एंड xf डिफॉर्मेशन है. तो वो इनिशियल उसकी जो नेचुरल लेंथ, उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या नेचुरल लेंथ वाली जो पोजीशन है उससे xi पे है और या फिर उससे xf पे है. तो हमारा जो नेचुरल लेंथ वाला केस है दैट बिकम्स ओरिजिन, है ना, कि यहाँ पे दिस इज द ओरिजिन जहां पे वो नेचुरल लेंथ में है आप स्प्रिंग, फिर ये xi पे है एंड देन xf पे है. तो these are the position of object. जब ब्लॉक यहाँ पे आ गया इलोंगेशन इज xi, जब ब्लॉक यहाँ पे आ गया इलोंगेशन इज xf, तो दैट विल बी द पोजीशन ओनली. ठीक है? तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है कैसे ले गए आप, आपने ऐसे 2-4
4 बार करके किया, या फिर आप यहाँ पे ले गए फिर वापस लाए, फिर यहाँ पे ले गए फिर वापस लाए, एंड फाइनली आप यहाँ पे ले गए। तो वी जस्ट डोंट वांट टू नो कि इन बिटवीन क्या हुआ, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन, जो व्हाटएवर इंटरवल वी वांट टू स्टडी, इन दैट इंटरवल व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। उसके बीच में क्या हुआ, आपने कितनी बार ऐसे ऑब्जेक्ट को ले गए हमें नहीं पता, या वी जस्ट डोंट वांट टू नो। द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी half k xi square minus xf square. It only depends on the initial and final position. Clear है? So when we came to know कि भाई for conservative forces the work done depends on the position. ठीक है? Work done depends on initial and final position only. तो फिर हमने just to make problems easier हमने क्या किया, एक नया concept हमने बनाया, that is potential energy. ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का हमने एक नया कंसेप्ट हम लेकर के आए, उसको हमने समझने की कोशिश की, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब पहली चीज एक आता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेकर के आए और हमने ये बोला कि भाई जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनका अपना एक एरिया होता है, दे हैव अ फील्ड, जहां पे वो उनका एक क्या कहना चाहिए, दे हैव अ किंगडम टाइप का, उनका एक किंगडम है, एक राज्य है जहां पे उनकी चलती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक फील्ड होता है। जैसे स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग से इफ यू आर अटैचिंग अ ब्लॉक, स्प्रिंग से अगर आप एक ब्लॉक को अटैच कर दो तो आप उसको आगे पीछे लेकर के अगर जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स उस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इफ यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, आप अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को देखो तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सो ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, ये सामने कैमरा रखा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप देख रहे हैं आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एवरी ऑब्जेक्ट, हर किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर इफ यू मूव आउट ऑफ दिस ग्रेविटी, जो कि स्पेस में होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, सो इफ यू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, इफ यू मूव आउट ऑफ दिस फील्ड, तो वो फोर्स नहीं लगेगा। बट एज सून एज यू कम इनटू दिस फील्ड, आपको वो फोर्स लगने लगेगा। क्लियर है? वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इफ आई कीप अ चार्ज हियर, ठीक है, एक चार्ज को अगर हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, कोई ना कोई, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लाया, इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, इफ यू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एक रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा इस पे। इफ यू ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द चार्जेस, स्टिल दैट फोर्स इज एक्टिंग। तो इसका अपना एक फील्ड बन गया कि भाई इफ यू कम इन माय फील्ड तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इफ यू कम इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इसके फोर्स, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फील्ड में अगर आप आओगे तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वैसे मैग्नेट का भी है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आप पढ़ोगे। आप क्या करते हो, एक मैग्नेट है, उसके पास अगर आपने आयरन पाउडर डाल दिए या फिर कोई दूसरा मैग्नेट लाए तो क्या होता है, उस पर भी फोर्स लग रहा होता है। क्लियर है? जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, इफ यू रब अ कॉम्ब इन योर हेयर और इफ यू ब्रिंग इट नियर दी पेपर, स्मॉल पेपर के जो टुकड़े होते हैं उसके पास अगर आप लेकर के आओगे तो क्या होगा, अगेन वहां पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर विल बी सम अट्रैक्शन बिटवीन द पेपर एंड द कॉम्ब। ठीक है, तो दीज आर दी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, इनका अपना एक फील्ड होता है जहां पे उस फील्ड में वो क्या करेंगे, उस फील्ड में उनका फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो गया। नाउ वी विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। So when we calculated the work done by conservative force, we came to know कि भाई conservative force का जो work done है it depends on the initial and final position। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि initial जो position थी, final जो position थी, we calculated the work done कि इस ब्लॉक को जब यहाँ से यहाँ मूव हुआ, what was the work done, हमने क्या काम किया या उस फोर्स ने क्या काम किया। So let's define पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जस्ट अभी पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओ, लेट्स डिफाइन एनर्जी एसोसिएटेड विद दोज पॉइंट्स। क्यों किया हमने, भाई कोई फील्ड है, मान लो अभी ग्रेविटेशनली कोई फील्ड है कंजर्वेटिव फोर्स का,
नाउ ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट दिस पॉइंट एंड फाइनली इट वाज एट दिस पॉइंट, और यहां से यहां जब हम गए तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही था मान लो WC, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था WC. नाउ इवन इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. इफ यू टेक इट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो हमने कहा लेट्स डिफाइन एनर्जी एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंट. हर पॉइंट से एक एनर्जी को हम एसोसिएट कर देते हैं कि भाई व्हेन पार्टिकल इज हियर उसकी एनर्जी कुछ मान लो E1 है या EI है, व्हेन पार्टिकल इज हियर उसकी एनर्जी EF है. ठीक है. एंड व्हेन दिस, क्योंकि हमें पता है कि भाई वर्क एंड एनर्जी आर क्या बोलते हैं, पैरेलली चलते हैं. वो आप वर्क करोगे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हो, है ना. तो हमने क्या किया, यहां से यहां जाने में व्हाटएवर वर्क वाज डन, यहां से यहां जाने में व्हाटएवर वर्क वाज डन, हमने उसको एसोसिएट किया. वी एसोसिएटेड दैट वर्क डन विद दिस एनर्जीज एंड वी सेड कि इस एनर्जी का जो भी डिफरेंस आएगा, इस एनर्जी का जो भी डिफरेंस आएगा EF माइनस EI या फिर EI माइनस EF, हमें नहीं पता कि हमें अभी कैसे रिलेट करना चाहिए, बट व्हाटएवर विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी, उसको हम वर्क डन से रिलेट करेंगे. अब दिस कैन बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और दिस कैन बी द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं कि क्या डिफाइन करना चाहिए. सो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज, आप पोटेंशियल एनर्जी का लिख लो. पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क due to the virtue of its position. It is the energy or capacity to do work due to the virtue of its position. Due to the virtue of its position. Clear है ये चीज. जैसे हमने अगर इसको यहाँ, अगर ये यहीं पे रखा होता, मान लो दिस इज द ग्राउंड, इसी जगह पे रखा होता, मान लो दिस इज द ग्राउंड. अभी ग्राउंड आपको दिखा नहीं सकते कैमरे में, इसलिए मैंने इसको ग्राउंड लिया. तो यहाँ से ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है. अभी ये नीचे फर्दर ये नहीं जा सकता, बट अगर इसको हमने यहां रखा तो इट कैन मूव डाउन. तो यहां पे बिकॉज दिस वाज एट दिस पोजीशन इट कैन मूव डाउन. ठीक है. तो ये है इसकी पोजीशन की वजह से इट इज एबल टू मूव डाउन. क्लियर है ये चीज. तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. क्लियर है. Now potential energy, how it is defined or how it is related with the work done by conservative force, वो आप लिख लेंगे. उससे पहले एक और पॉइंट जस्ट टू मेक इट इजियर. अब मैंने क्या किया, इसको मैंने EI लिया और इसको मैंने EF लिया. Let's say work done by conservative force to take this object from this point to this point was 10 joule. 10 joule था. ठीक है. When object was taken from this point to this point, work done by conservative force was 10 joule. Let's say अगर हम यहाँ पे लेते हैं EI is equal to 15 joule and EF is equal to 5 joule. ठीक है. EI is equal to 15 joule and EF is equal to 5 joule. What I can write, work done by conservative force is equal to E final minus E initial. अगर हमने इसको लिया 20 joule, then this can be taken as, and अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को, then I should take मतलब then EF must be how much 10 जूल. अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे आता है तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि इट इज एट दिस पॉइंट एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 15 जूल, देन यहाँ पे क्या है 5 जूल. अगर मैंने यहाँ लिया 20 जूल, मतलब यहाँ पे क्या है 10 जूल. And if at this point potential energy is 15 joule, at this point potential energy is 5 joule, ठीक है. मतलब at some point zero रही होगी. ठीक है. वो तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि at what position what energy I want to take. So by if we are taking this case, किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 रही होगी, and according to this यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रही होगी. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज 0. जैसे मैंने यहाँ पे ग्राउंड को लिया रेफरेंस पॉइंट. जनरली विल टेक ग्राउंड एज रेफरेंस पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम्स जहां पे हमें इजियर होगा वी विल टेक दी रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन अस कि हम क्या लेना चाहते हैं.
सो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, अगर मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया, इट मींस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। कैन यू सी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिखाई दे रही है? यस, इट कैन नॉट मूव डाउन। तो ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से अगर हम किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है एंड इट विल मूव डाउन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? दिस वाज द रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे कि वो कैसे डिफाइन की गई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन, potential energy of a body at any position in conservative force field, potential energy of a body at any position in conservative force field is defined as the work done by external force against the action of conservative field in order to shift it from a reference point to the present position. ठीक है, so अगर मैंने ये reference point लिया, this is the reference point, सो रेफरेंस पॉइंट से यहां पे लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को क्या वर्क करना पड़ेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का फील्ड है। इन दिस फील्ड, इस जगह से ऑब्जेक्ट को इस जगह पे लाने में, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पोजीशन में लाने में वॉट एवर वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पोजीशन। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब डिफरेंट पोजीशन देख लो, इस पोजीशन पे क्या होगा? देयर विल बी अ डिफरेंट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एट दिस पॉइंट कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। whatever work is required to bring this object from reference point to this point is the potential energy of this point. Clear है? दूसरा, और how we can say work done by conservative force to bring the object from present position to reference position. Work done by conservative force. This is present position. So potential energy is defined as the work done by conservative force. पिछला क्या था? Work done by external force. In this case, work done by conservative force to bring the object from present position to reference position is equal to the potential energy of this position. इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? It is equal to the work done by conservative force to bring the object from this point to this point. Obviously होगा, अगर आपको यहां से यहां लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? सेम एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे होते हैं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। यही होता है ना, जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस mgh। क्लियर है? हमने एक ऑब्जेक्ट वाज हियर, उसको हम h हाइट पे लेके गए। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg एंड ऊपर नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम हाथ से उसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज हम उसको आराम से ऐसे लेके आए हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। ऑब्जेक्ट वाज केप्ट ऑन ग्राउंड, उसको हम यहाँ लेके आए, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई इज जीरो, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय नॉर्मल। सो बेसिकली क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? सो इफ वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पोजीशन। फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, या फिर इसी केस में बात करें तो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप मैथमेटिकली इसको हम लोग डिफाइन करने की बात करें या इसको समझें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे यहां पे हमने रेफरेंस पॉइंट लेकर के किया, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे हम जाते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कैसे डिफाइन किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब यू एफ माइनस यू आई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा क्यों है, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या किया हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है ये चीज। तो यहां से आई कैन राइट यू फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यू फाइनल यू इनिशियल कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ लेट्स से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाज पॉजिटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मींस इसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसमें अगर आप देखो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज हायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज लोअर। उसमें आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ऐड करना पड़ रहा है, देन यू आर गेटिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली जब आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव होगा, इट विल बी पॉजिटिव व्हेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के इफ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर योर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसा आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। इट मींस व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यही हमने डिफाइन किया, इसका मतलब तो वही हो रहा है ना। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसको पहले दूसरा टाइप देखते हैं। यहां से हमारे पास आया uf is equal to ui minus wc, ये तो लिख लो, when we move in the direction of conservative force potential energy decreases। अब when work done by conservative force is negative, तब क्या होगा, this is negative, so this will be, this is negative, this will be positive। ठीक है, इसका मतलब u final is u initial plus something positive, इसका मतलब u final is greater than u initial। ठीक है, u final is u initial plus something positive। इसका मतलब when work done by conservative force is negative, when work done by conservative force is negative, potential energy is increasing। when work done by conservative force is negative, potential energy is increasing। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब work done by conservative force negative कब होगा, when we are moving against conservative force या direction of conservative force। अगर conservative force इस साइड है, displacement is in this direction, it means theta is 180, या फिर if there is any obtuse angle also, तब भी क्या होगा, conservative force का work done कैसा आ जाएगा, it will be negative। So when we are moving against the conservative force, when we are moving against the conservative force, work done by conservative force is going to be negative and potential energy is going to increase। ठीक है, potential energy is going to increase। देखो, in this direction, ये reference है, in this direction
अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, इट इज पॉजिटिव, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। और अगर हम ऊपर लेके जाते हैं इस ब्लॉक को, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। अब इफ दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो हियर, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे क्या है, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। अगर यहां से हम देखें तो क्या होगा, यहां से अगर हम देखें, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, इससे अगर हम H ऊपर गए और H नीचे गए तो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस mgh, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 पॉइंट, एंड यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस mgh। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस wc। तो u फाइनल इज दिस, u इनिशियल इज 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, तो यहाँ पे क्या आ गई, माइनस mgh। क्या किया हमने, u फाइनल इज इक्वल टू माइनस wc प्लस u इनिशियल, u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस wc, u इनिशियल इज 0, wc इज mgh, तो हमारे पास u फाइनल आ गया माइनस mgh। यहाँ पे क्या किया हमने, u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस wc, u इनिशियल इज 0 माइनस wc माइनस माइनस mgh, ये हो गया प्लस mgh। इसका मतलब वी आर सेइंग कि अगर ये रेफरेंस पॉइंट है ग्रेविटी के बारे में, अभी हम ग्रेविटेशनल ये जो एग्जांपल लिया है, तो हमने क्या किया, कंजर्वेटिव फोर्स को हमने ले लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड कंजर्वेटिव फील्ड हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हर फोर्स फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, वी आर मूविंग अप, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पे mgx, mgh1, mgh2, mgh3, if it is 10 meter 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, so potential energy is increasing when we are moving up। अब सबसे शुरू में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड। तो हमने क्या किया, अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें, तो यहाँ पे जब इसको हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, व्हेन इट विल रीच टू दिस पॉइंट इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट विल गेन सम वेलोसिटी। तो यहाँ पे इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हमने इसको रिलीज किया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। अब सोच के देखो, जितने ऊपर से रिलीज करोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जितने ऊपर से रिलीज करोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगी। क्लियर है? इट मींस जितना ऊपर जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। इफ यू आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, इसका मतलब आपने ज्यादा ऊपर से रिलीज किया, और अगर ज्यादा ऊपर से रिलीज किया मतलब वहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, तभी नीचे आया तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई। इट मींस व्हेन वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हेन वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से डिफाइन किया कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेट हो जाए और फिर ये चीजें भी सेट हो जाए। क्लियर है? तो व्हेन वी आर मूविंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स या फिर व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? जैसे अगर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वाज हियर, ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली हियर, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आए, अब इसका क्या है, इट हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ इस पॉइंट की कंपैरिजन में इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? डेफिनेटली कम होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर यहां से रिलीज करोगे और यहां पे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कुछ मान लो ये हाइट है h, ये हाइट है h, तो हमने यहां से अगर रिलीज किया तो यहां पे जब आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। काइनेमेटिक्स वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। लेकिन अगर मैंने 2h से रिलीज किया तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, √2g2h।
√2g2h। ठीक है, तो अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, रेफरेंस पॉइंट, ये h हाइट पे है, ये 2h हाइट पे है। इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी √2g2h। इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट a एंड b, तो a वाले केस में इतनी होगी, b वाले केस में √2gh। क्लियर है? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वेलोसिटी कितनी है 2√gh, और इसमें क्या है √2√gh। सो इन दिस केस जब यहां से यहां पे आया, काइनेटिक एनर्जी गेन इज मोर, इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज लेस। ठीक है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, काइनेटिक एनर्जी गेन इज लेसर देन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन ज्यादा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। इट मींस व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्या हो रहा है, when you are moving from this position to this position, क्या हो रहा है, potential energy is decreasing. So when you are moving in the direction of conservative force, when you are moving in the direction of conservative force, work done by conservative force is positive, potential energy decreases. When you are moving against conservative force, when work done by conservative force is negative, potential energy increases. Clear है ये चीज? Potential energy increases. तो ये एक दो पॉइंट लिख लो कि when we are moving in the direction of conservative force, potential energy decreases. When we are moving against the direction of conservative force, potential energy increases. And this is the relation between change in potential energy and work done by conservative force. Clear है? इसमें और भी कंसेप्ट हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू -WC। अब इसी को थोड़ा सा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसी में भी। So when we talk about small work done and small change in potential energy, तो क्या आ जाएगा हमारे पास du is equal to minus dw, du is equal to minus dwc। ठीक है, du is equal to minus dwc। अब यहाँ पे this is again स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, एनर्जी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। ठीक है, यूनिट जूल्स, यूनिट जूल्स, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी है ना भैया, तो यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनी एनर्जी क्या होगा, उसके यूनिट्स होंगे जूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इफ वी सी, मान लो फोर्स इज देयर ओनली इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इज देयर ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो ये तो क्या आता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स f dot dr, f dot dr where f can be in x or xy or whatever combination, dr can be x xy whatever combination। अब मान लो हमने लिया केस x इज, फोर्स इज ओनली इन x डायरेक्शन, फोर्स इज ओनली इन x डायरेक्शन, सिर्फ x में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे du इज इक्वल टू माइनस fx dx। ठीक है भाई, ओनली x डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी ओनली x डायरेक्शन में ही होगा। अब हमारा जो यहाँ पे ये आ गया du इज इक्वल टू माइनस fx dx। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स ओनली इन y डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा, f इज ओनली इन y डायरेक्शन, देन du इज इक्वल टू माइनस fy dy, व्हेन ओनली इन z डायरेक्शन du इज इक्वल टू माइनस fz dz। क्लियर है, तो यहाँ पे ये है पोटेंशियल एनर्जी चेंज x में, y में, z में, फोर्स इन x, डिस्प्लेसमेंट इन x, फोर्स इन y, डिस्प्लेसमेंट इन y, फोर्स इन z, डिस्प्लेसमेंट इन z। सो नाउ अगर आपके पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इफ यू हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, सो फ्रॉम देयर अगर आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फोर्स, अब आपके व्हेन यू हैव पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, स्केलर है। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट फोर्स, फोर्स कैन बी अ वेक्टर, फोर्स कैन बी इन ऑल थ्री डायरेक्शंस। तो अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे करेंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैंने du यहाँ पे मैंने अगर किया du डिवाइडेड बाई dx, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स माइनस ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। सिमिलरली du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन, एंड सिमिलर du डिवाइडेड बाई dz
इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है देन राइट दिस एक्सप्रेशन f टोटल f वेक्टर कैन बी रिटन एज, इसको इधर लेके जाओ सारे माइनस को, माइनस ऑफ du divided by del x, not du, del x, del u divided by del x I cap, this will give us the force in x direction। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको प्रॉब्लम के साथ समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी u का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो भी u का एक्सप्रेशन होगा उसको डिफरेंशिएट ओनली विद x, x को वेरिएबल मान के कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कंसीडर द x एज वेरिएबल, y z अगर है उनको कांस्टेंट कंसीडर करो एंड देन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y मतलब इससे क्या मिला आपको, व्हेन यू डिफरेंशिएटेड u विद रिस्पेक्ट टू x आपको मिला फोर्स इन x, तो हमने लिख दिया माइनस du डिवाइडेड बाई dx विच इज दिस I कैप प्लस माइनस डेल u डिवाइडेड बाई डेल y j कैप माइनस डेल u डिवाइडेड बाई डेल z k कैप। क्लियर है ये चीज? तो इसमें क्या है, वी आर डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x कंसिडरिंग y एंड z एज कांस्टेंट। वी आर डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y कंसिडरिंग x एंड z कांस्टेंट। वी आर डिफरेंशिएटिंग u with respect to z considering x and y constant. This is called partial differentiation. Very simple. So when you want to find out force, if the expression of potential energy is given, then we can find out it like this. ठीक है, और अगर आपका किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, आपको डायरेक्टली गिवन है कि फोर्स इज ओनली इन x डायरेक्शन, तो फोर्स इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन x डायरेक्शन डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर तीनों डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है तो then we will have to do partial differentiation with respect to x to find out force in x, with respect to y to find out force in y, with respect to z to find out force in z direction.